हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। आज हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6 साइंस की बुक है आपकी। पहला चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके, इसमें मैंने आपके लिए वर्कशीट तैयार की है। आई होप आपने लेसन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ये आपका एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट? आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस बुक से, व्हाट इज nutrients. So nutrients are those important or some components that are needed by our body. So what is nutrient? Nutrients are those components which are needed by our body for the growth and maintenance. Okay, these are the nutrients. ठीक है. What are the major nutrients? Major nutrients are carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, or in addition food contains डाइटरी फाइबर्स, वाटर एटसेट्रा। देखिए, ये मैंने यहाँ पे आंसर्स नहीं लिखे हैं, ये आपका एक टेस्ट के तरीके से काम आएगा कि व्हाट इज न्यूट्रिएंट? न्यूट्रिएंट आर दोज कंपोनेंट विच आर नीडेड फॉर आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। ओके, व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स? मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins, minerals, or dietary fibers or water also. Okay, now carbohydrates are found in our food in form of sugar and starch. Okay, in form of sugar and starch. A dash color indicates that presence of proteins in food items. ठीक है, प्रोटीन प्रेजेंस है आपके फूड आइटम्स में, तो किस जो टेस्ट होगा तो किस कलर में आपका इंडिकेट करेगा? वो करेगा वॉयलेट कलर में। कौन से कलर में? वॉयलेट कलर में। dash are needed for growth and repair of our body. So proteins are needed for growth and repair of our body. क्योंकि बेटा इतना वक्त अभी नहीं है, आप लेसन को अच्छे से रीड करो, अच्छे से सारे क्वेश्चन जो मैम ने करा रखे हैं या जो बनते हैं वो याद करो और फिर इस टेस्ट को आप लगा के देखो। इसमें वही सारे क्वेश्चन हैं जो पॉसिबिलिटी है आने की। dash are needed for growth and repair of our body. So protein are needed for growth and repair of our body. Dash are called body building food. So proteins are called body building food. Okay, vitamins help in protecting our body against disease. So vitamins are very important for our body. Dash help body to fight against many disease. So vitamins helps body to fight against many disease. Name the different type of vitamins. So in our book there's a very beautifully describe about vitamins. So vitamins are different kind. ठीक है, vitamins are different kind known by different names. So vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. ठीक है, और एक और ग्रुप भी है, सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। सो कौन कौन से हो गए इसमें? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। चलिए, विच vitamins help our body to use calcium for bones and teeth? बेटा विटामिन डी। विटामिन डी helps our body. Vitamin D helps our body to use calcium for bones and teeth. Now vitamin D is also present in, so vitamin D ऐसा कौन सा सोर्स है जो फ्री में हमारे लिए अवेलेबल है? So vitamin D is also present in sunlight. Okay, so what are dietary fibers? That's most important, dietary fibers. So dietary fibers are also known as roughage. They are also known as roughage. They are very important to help our body get rid of undigested food. क्या? They are helps our body get rid of undigested food. इनकी हेल्प से हमारे जो बॉडी में जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको पचाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डाइटरी, आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। ठीक है, दे आर नोन एज roughage. They are known as roughage. They are provided by plant. ठीक है, और they help in our body to get rid of undigested food. ठीक है, what is balanced diet? बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस डाइट? सो फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट. वी शुड टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी in a proper portion. Okay, so the food we normally eat is our diet for growth, maintenance and good health. Our diet have all the nutrients in right amount, not too much, not very less.
is called a balanced diet. So balanced diet is a diet which have all the nutrients in a good amount, ठीक है, and also include roughage and water, ठीक है. दोबारा बताऊं, what is balanced diet? Balanced diet is balanced diet means that a diet which have all the in all the nutrients in very good amount, ठीक है, in very good amount or in a right amount, it is called a balanced diet. It is include also roughage and water. अच्छा बच्चा, अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी लिख के लाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. आप मुझे बताइए कि मैं आंसर लिखूंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है. सो व्हाट इज ओबेसिटी? So obesity means it is very harmful for our body, ठीक है. When we eat too much of fat rich food and we may end up suffering from a condition called obesity. So obesity एक condition है जब बहुत लंबे टाइम तक फैट को कंज्यूम करते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक, तो हमें ओबेसिटी हो जाता है, मतलब मोटापा. ओबेसिटी मीन्स मोटापा, कि हम जब लंबे टाइम तक एक फैट वाले खाने को कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है. अब इसमें कुछ एग्जांपल पूछ ले तो फैट्स लाइक फ्राइड फूड्स लाइक समोसा, पूरी, मलाई, ठीक है, रबड़ी, ठीक है, स्वीट्स, पेड़ा, है ना, मतलब बहुत लंबे टाइम तक रोज कंज्यूम नहीं करना, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक लंबे टाइम तक फैट वाली चीजों कंज्यूम करना इज कॉल्ड ओबेसिटी. एक कंडीशन हो जाती है, हम सफरिंग हो जाते हैं ओबेसिटी से. नाउ व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज? देखो डेफिशिएंसी हो जाता है कि एक लंबे पीरियड तक हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी बनती जा रही है. तो कंटिन्यूसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, कि एक लंबे टाइम तक किसी एक न्यूट्रिएंट की काफी कमी है और क्या होगा, फिर वो उसको डेफिशिएंसी हो जाती है. अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? सो डेफिशिएंसी डिजीज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड. व्हाट? Disease that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease, ठीक है. और all deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. आपका ये क्वेश्चन है नेक्स्ट. द ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट मीन्स कि ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन गुड अमाउंट, इन अ राइट अमाउंट, ओके, इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर, ठीक है. नाउ व्हाट वुड हैपन इफ अ पर्सन इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स? क्या हो कि एक इंसान में एक साथ कार्बोहाइड्रेट्स की भी और प्रोटीन की, दोनों की ही कमी हो जाए, क्या होगा? तब क्या होगा, जो इंसान होगा, ठीक है, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी, ठीक है. द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली. सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन, थिन, सो वीक और इवन may not even be able to move, कि वो चलने के लायक भी नहीं रहेगा, बहुत पतला हो जाएगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, लीन और थिन दिखाई देगा, वीक दिखाई देगा, ठीक है. सो इफ अ पर्सन डेफिशिएट बोथ द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप. आप इसको ना लाइन्स में लिखिएगा, पॉइंट्स में लिखिएगा. द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, become very lean or thin, become so weak and he or she may not even be able to move. Okay, so all deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. Now next, अब देखिए मैंने इसको एक ब्लॉक में ही रख दिया है, क्योंकि क्या है ना, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे. आपको इसे बहुत अच्छे से इस टेबल को याद करना है, मेरे साथ आप इसको रिवाइज करते जाइए. विटामिन ए, पहले तो देख लो विटामिन कौन कौन से. विटामिन ए, B1, C और डी. आपके बुक में एनसीईआरटी में यही दे रखे हैं. फिर कुछ हमारे पास मिनरल्स है, जो आयरन है, कैल्शियम है, आयोडीन है. इनको मिनरल्स कहते हैं, आयरन, कैल्शियम, आयोडीन. दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. ओके, दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. देखो विटामिन ई से डिजीज क्या होगी? डिजीज होगी लॉस ऑफ विजन, कि हमारा जो देखना है, हमारी आंखों की जो शक्ति है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, ठीक है. पुअर विजन हो जाएगा. सिम्टम्स ये होगा कि पुअर विजन हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा इन डार्कनेस, की इसको रात में दिखाई देना खत्म हो जाएगा. और अगर बिल्कुल ही डेफिशिएंट हो गया विटामिन ए से, तो बिल्कुल ही अंधा हो जाएगा, उसकी जो विजन है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी. तो हमने क्या देखा, रिवाइज करे साथ साथ. विटामिन ए डिजीज क्या होगी, लॉस ऑफ विजन. क्या होगी, लॉस ऑफ विजन. सिम्टम्स यही है कि उसको या तो डार्कनेस में दिखना बंद हो जाएगा या उसका कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन हो जाएगा. नाउ मूव ऑन द विटामिन B1. बी से याद करो, बेरी.
B1 बेरी 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 हो जाएगा, इसको डिजीज हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। इसमें कुछ हमारी मसल्स बिल्कुल वीक हो जाती है, ठीक है, और काम करने के लिए तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती। विटामिन बी की कमी है तो आपको बेरी बेरी रोग होगा, और बेरी बेरी जो डिजीज है उससे क्या होगा, बिल्कुल वीक मसल्स हो जाएंगी, पतली पतली मसल्स हो जाएंगी आपकी बिल्कुल, और क्या हो जाएगा, आपको काम करने की जो एनर्जी है ना वो आप में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सिम्टम्स हैं कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। नाउ विटामिन सी से याद करो, सी से सकरवी, सी से सकरवी, बी से बेरी बेरी, ए से पुअर विजन, ठीक है। सो विटामिन सी से सकरवी हो जाएगा। इसमें क्या हो, सकरवी मतलब हमारे जो गम्स है ना उसमें ब्लीडिंग आने स्टार्ट हो जाती है, और हमारे जो घाव है ना वो जो हमारी वुंड्स हैं वो इतनी जल्दी हील नहीं होती, कोई चोट लगे तो बहुत लंबे टाइम तक चोट बनी रहती है। तो विटामिन सी मीन्स सकरवी, और इसके सिम्टम्स क्या होंगे, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अच्छा, क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है कि वीक मसल्स और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क है, तो कौन सा आपका विटामिन की डेफिशिएंसी है, तो आप लिखोगे कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी है, विटामिन B1। आपकी ब्लीडिंग गम्स हैं, वुंड्स आपको बहुत लंबा टाइम ले रही हील होने के लिए, तो कौन सा आपका डिसऑर्डर है, कौन सी विटामिन की कमी है, तो विटामिन सी की कमी है, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से हमें हो जाए रैकेट्स, क्या हो जाता है, रैकेट्स, RICKETS, ठीक है। आप स्पेलिंग को प्लीज अच्छे से याद कीजिएगा, RICKETS, रैकेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड, जो हमारी जो हड्डियां है ना हाथ पैरों की वो काफी सॉफ्ट हो जाती है, और सॉफ्ट होने की वजह से कहीं भी बेंड हो जाती है, आड़े तिरछे हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन डी मीन्स रैकेट्स, इससे क्या होगा, डिजीज क्या होगी, रैकेट्स हो जाएगी, बोन्स वीक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और कहीं भी इसे भी बेंड हो जाएगी। नाउ मूव ऑन द मिनरल्स, कैल्शियम इज आयरन, सॉरी, आयरन मीन्स, आयरन से अगर डेफिशिएंट है आयरन से तो आपको एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। आपके अंदर इतनी वीकनेस हो जाएगी, ठीक है, आंखें आपकी पीली पीली दिखाई देंगी, ठीक है, वीकनेस ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, वीकनेस। और ये लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है, लड़कियों में ज्यादा देखने को मिलता है, तो उनको आयरन की जो टैबलेट्स मिलती है वो उनको एक रेगुलर बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है। सो आयरन की से क्या डिजीज होगी, वीकनेस से होएगा हमारा एनीमिया, ठीक है, एनीमिया हो जाएगा, और इसका सिम्टम्स है वीकनेस। नाउ मूव ऑन द कैल्शियम इज मोर इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। सो बोन टूथ डिके, अगर कैल्शियम कम है तो आपके दांत टूटने लग जाएंगे, जो हड्डियां हैं वो भी अंदर से टूटने लग जाएंगी, धीरे धीरे टूटने लग जाएंगी, ठीक है। तो इसका सिम्टम सही है, वीक बोन्स, टूथ डिके, ठीक है। नाउ आयोडीन, आयोडीन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसमें गोइटर हो जाता है, क्या हो जाता है, गोइटर, GOITER, गोइटर हो जाता है। गोइटर क्या होता है, जो हमारी नेक है ना उसमें जो ग्लैंड्स है उसमें स्पोलन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चे में ना मेंटली डिसेबिलिटी हो जाती है कि वो अपने दिमाग से कुछ सोचने समझने की जो शक्ति है उसकी खत्म हो जाती है। तो एक बार दोबारा से हम सारा रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए से डिसऑर्डर क्या होगा, पुअर विजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, पुअर विजन हो जाएगा। सिम्टम्स यही है कि पुअर विजन होगा, डार्कनेस में दिखना बंद हो जाएगा, और कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। नाउ विटामिन बी बेरी बेरी, सो सिम्टम्स क्या होंगे, वेरी वीक मसल्स हो जाएंगी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क हो जाएगा। विटामिन सी सकरवी, सकरवी से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। कैल्शियम की डेफिशिएंट है तो बोन टीथ डिके हो जाएगा, वीक बोन्स हो जाएंगी, टूथ डिके हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन से गोइटर, आयरन से एनीमिया, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, समझिए और बार बार इनको रिवाइज कीजिए, ठीक है, तभी चीजें आपके लिए वर्क करेंगी। ना देखो, एनीमिया इज कॉज्ड बाय, ऊपर पता है अभी, आयरन, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है, एनीमिया। अब है नेम टू फूड्स रिच इन, अब ये कुछ फूड्स के नाम, फूड्स हैं आपके, हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके फूड्स बताने किस किस से मिलता है। तो फैट्स है घी और बटर। देखो एक्सिस में कुछ भी चीज खाओगे वो आपके लिए दिक्कत ही करेगा, ठीक है। तो फैट में घी और बटर है, इनको आप एक स्पेशल अमाउंट में, एक राइट अमाउंट में खाओ, ये आपके लिए कभी भी आपको डेफिशिएंट, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा, ठीक है। सो फैट इज अवेलेबल इन घी एंड बटर। स्टार्च इन राइस एंड पोटैटो, राइस इन और पोटैटो। डाइटरी फाइबर, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है। दोबारा से क्लियर, फैट किस किस में मिलेगा आपको, घी में मिलेगा, बटर में मिलेगा, ठीक है। आपके दिमाग में और भी कुछ आ रहा है तो आप और भी लिख सकते हैं। स्टार्च है हमारा राइस और पोटैटो, राइस और पोटैटो, ठीक है, व्हीट, बार्ले। डाइटरी फाइबर्स हो गया,
कैरेट में और कैबेज में। व्हाट आर द डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स हेल्प्स इन टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टिव फूड। ओके, नाउ मूव ऑन द प्रोटीन। प्रोटीन वेरी रिच, पल्सेस में मिलेगा PULSES और मीट में मिलेगा आपको, ठीक है, पल्सेस और मीट, एग, ठीक है, पनीर, बहुत सारे इसके कंपोनेंट्स हैं जिसमें हमें प्रोटीन मिल सकता है, फूड्स हैं जिनमें प्रोटीन मिल सकता है। सो आई होप आपको अभी समझ में आ रहा होगा। बच्चा दोबारा से एक बार याद कीजिए, फिर इस टेस्ट को लगाइए, ये आपको डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।